we sta- we just started with the bills of exchange and we understood the various options available to drawer, right? And at the same time to the drawee. So drawer has four options. First option, retain the bill till the due date. Retain the bill till due date means he will draw the bill on drawee. वो drawee पे bill क्यों draw कर रहा है? Because drawee is his debtor. He has to collect the money from the debtor for the goods sold to him on credit. इसलिए उसने bill draw किया. Try to understand. And now, right, he will retain that bill till the due date. On due date, he will go to the drawee, will present the bill, and will collect the cash. Bill will honor. Second option is he will use that bill, which is asset for him, to pay off his liability. He will endorse it to the creditor. That is called as endorsement. And in that case, try to understand, right? The person who endorses is called as endorser, and the person to whom bill is endorsed is called as endorsee. तो आपका creditor क्या हो जाएगा? आपका creditor, राइट, एंडोर्सी हो जाएगा. आप उसको क्यों बिल दे रहे हो? बिकॉज पहले कभी आपने उससे गुड्स परचेस किए थे, आपको उसको पे करना था, तो आपने क्या किया? जो आपके पास राइट है, राइट इन द फॉर्म ऑफ बिल्स रिसीवेबल, वो आपने उसको क्या किया? एंडोर्स किया. And he will use that bill, try to understand, right? He will take that bill to the drawee on due date. Drawee will give him cash. इससे क्या हो जाएगा, राइट? मेरे और ड्रॉवी के बीच का भी ट्रांजैक्शन सेटल हो जाएगा, और मेरे क्रेडिटर के बीच में भी ट्रांजैक्शन क्या हो जाएगा? सेटल हो जाएगा. The third option, if drawer is in need of money, he can go to the bank and can sell that bill to the bank. That process is called as discounting. And when drawer discounts the bill with the bank, he gets cash from the bank. Actually वो cash नहीं मिलती, उसके account में deposit हो जाता है, right? And if some amount is deducted for this like service, that is called as discounting charges. So drawer does not get entire bill, right? He gets net of discount. So he will be using the money, and on due date, bank as a owner of the bill will present the bill to whom? Drawee, and drawee will give cash to the bank, and drawee will give the entire cash. So जब बैंक ने डिस्काउंट किया, तो बैंक gave some less amount to the drawer, and collect जब किया, gross amount collect किया, the difference, that is discount, is the income of the bank. And the last option, in that case, the drawer will appoint bank as a collection agent, and for that purpose drawer will send the bill for the collection to the bank. Bank collection agent बोल के काम करेगा. Bank is not a owner of that bill. Bank will go to the drawee on a due date, will present the bill, will collect the cash, and will deposit the cash into the account of drawer. Obviously they will deposit net amount, because they will levy सर्विस चार्जेस, कलेक्शन चार्जेस, एजेंसी चार्जेस. समझ में आ रहा है? एंड इन दोस, राइट, दीज आर द फोर ऑप्शंस विद द ड्रॉवर. ड्रॉवी के पास दो ऑप्शन है, एक ऑनर द बिल और डिसऑनर द बिल. ड्रॉवी वंस एक्सेप्ट द बिल, ड्रॉवी पहले गुड्स परचेस करेगा, इसलिए वो डेटर बन जाएगा, एंड फिर ही विल एक्सेप्ट द बिल ड्रॉन बाय होम? ड्रॉवर, या ही विल गिव द प्रॉमिसरी नोट. दोनों में से एक. जनरली हमारे इसमें प्रॉमिसरी नोट के क्वेश्चन नहीं रहेंगे, रखने में मेरे हिसाब से कोई प्रॉब्लम नहीं है. रीजन, प्रॉमिसरी नोट हो या बिल्स ऑफ एक्सचेंज हो, अकाउंटिंग के लिए कोई फर्क नहीं पड़ता. डेटर के लिए वो बिल्स ऑफ एक्सचेंज या प्रॉमिसरी नोट बिल्स पेएबल रहता है, क्रेडिटर के लिए बिल्स ऑफ एक्सचेंज या प्रॉमिसरी नोट बिल्स रिसीवेबल होता है. अकाउंटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से कोई फर्क नहीं पड़ेगा. सो अब मैं क्या बोल रहा हूं, ध्यान देना, राइट? ड्रॉवी will purchase the goods, he will become debtor, then he will accept the bill drawn by his creditor, and जैसे वो बिल एक्सेप्ट करेगा, उसके लिए वो बिल्स पेएबल हो जाएगा, and he has to wait till due date. Anyone who presents him the bill, चार ऑप्शन में चार अलग लोग बिल प्रेजेंट करेंगे. अगर बिल रिटेन किया है तो ड्रॉवर खुद बिल प्रेजेंट करेगा और ड्रॉवर को कैश देगा. अगर ड्रॉवर ने बिल एंडोर्स किया है तो ड्रॉवर का क्रेडिटर बिल प्रेजेंट करेगा हमें, और हम उसको पेमेंट करेंगे. हम मतलब ड्रॉवी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूँ.
थर्ड ऑप्शन में ड्रॉवर ने बिल अगर डिस्काउंट किया होगा तो उसकी बैंक एज ए ओनर हमें बिल प्रेजेंट करेगी, हम बैंक को पेमेंट करेंगे। एंड अगर ड्रॉवर ने बैंक को कलेक्शन एजेंट बोल के अपॉइंट किया होगा तो इन दैट केस राइट उसकी बैंक हमारे पास एजेंट बोल के आएगी, हम बैंक को पेमेंट करेंगे। हमें मतलब ड्रॉवी को बहुत सिंपल होता है, ड्रॉवी के बुक्स में इंट्रीज भी बहुत इजी हो जाती है, बिकॉज ड्रॉवी को खाली दो ही काम करना है, या तो ऑनर करना है या तो डिसऑनर करना है। पेमेंट करना है या तो ही विल नॉट मेक द पेमेंट, अगर पेमेंट नहीं होता है तो आगे क्या वो हम देखेंगे। अभी फिलहाल इतना समझ लेना, ड्रॉवी has to honor the bill or he will dishonor the bill. Drawee has one option at the time of honoring, that he can honor the bill before the due date, right? अगर उसके पास sufficient cash है तो and he wishes, then he can right honor before the due date. And obviously if he honors before the due date, he is making the payment before the due date, he can claim some rebate, and that is discount, right? He will get some rebate, concession, right? And that will be his gain. ऑनर बिफोर ड्यू डेट, ऑनर ऑन ड्यू डेट और डिसऑनर, ऐसे तीन ऑप्शंस चाहिए तो आप बोल सकते हो ड्रॉवी के पास रहेंगे। इज दिस क्लियर? यहां तक क्लियर है क्या? देन आई कैन मूव टुवर्ड्स लाइक अकाउंटिंग पार्ट। स्क्रीन शेयर हो रही है? जस्ट 1 minute. If anyone has doubt till now, you can ask me. फर्स्ट, अगर बिल रिटर्न होता है तो ओनर कौन रहता है बिल का? हमेशा पहले भी ड्रॉवर था, बाद में भी ड्रॉवर होगा, ड्यू डेट पे भी ड्रॉवर रहेगा, बिकॉज बिल खाली ड्रॉवर के पास था। दूसरा, अगर ड्रॉवर बिल एंडोर्स करता है तो बिल का ओनर कौन रहेगा? एंडोर्सी रहेगा। समझ में आ रहा है? तीसरे केस में अगर ड्रॉवर ने बिल डिस्काउंट किया था, अगर ड्रॉवर ने बिल डिस्काउंट किया था तो ओनर कौन हो जाता है बिल का? ओनर हो जाता है आपका बैंक, राइट? एंड फोर्थ केस में अगर ड्रॉवर ने बिल कलेक्शन के लिए दिया है, बिल भले ही बैंक के पास रहेगा बट बैंक इज नेवर ओनर, बैंक इज एन एजेंट, एजेंट इज नेवर द ओनर। समझ में आ रहा है? एजेंट हैज ए पोजीशन, एक्चुअल ओनरशिप इज विथ होम? द ड्रॉवर ओनली। सो जो ओनर होता है ना उसको पैसा मिलता है। अगर बिल ऑनर होगा ना, जो ओनर रहेगा वो उसके पास कैश रखेगा। फर्स्ट केस में राम खुद ओनर था, रिटर्न किया था तो ड्रॉवर विल रिटेन द कैश। सेकंड केस में एंडोर्सी विल रिटेन द कैश। थर्ड केस में बैंक विल रिटेन द कैश। यस, थर्ड केस में बैंक विल बी द ओनर, एंड फोर्थ केस में भले ही बैंक के पास पोजीशन रहे, बैंक इज नॉट द ओनर, बैंक इज जस्ट एन एजेंट। सो देयर इज वन क्वेश्चन, ठीक है सर, इन द केस 4, अच्छा, if the bill is dishonor, then bank sends the bill to the drawer for notary checking. Yes, obviously. Notary public के पास कौन जाएगा? The owner will go to the notary public. So first case में राम खुद ओनर है, राम ही बिल लेके गया था एंड राम ही वो क्या करेगा? नोटरी पब्लिक के पास जाएगा। सेकंड केस में राम का क्रेडिटर दैट इज एंडोर्सी विल गो टू द नोटरी पब्लिक। तीसरे केस में राइट बैंक एज ए ओनर विल गो टू द नोटरी पब्लिक। एंड फोर्थ केस में बैंक खाली एजेंट है, तो बैंक क्या करेगा? बोलेगा अरे बिल डिसऑनर हो गया। समझ में आ रहा है? फिर वो राम को फोन करके बोलेंगे कि ये बिल डिसऑनर हो गया, बिल लेके जाओ। राम बैंक में जाएगा, वो बिल कलेक्ट करेगा एंड नोटरी पब्लिक के पास जाएगा। समझ में आ रहा है? ऐसे होता है। एंड नोटरी पब्लिक कब होता है? ये जब बिल डिसऑनर होता है। देयर इज सम स्पेसिफिक प्रोसेस, उस प्रोसेस के थ्रू ही राइट वो करना होता है, अदरवाइज दैट इज नॉट वैलिड। क्लियर है? आगे अच्छा, इसके सिवा किसका डाउट है? आई कैन टेक द डाउट्स, कोई प्रॉब्लम नहीं। इफ एनीवन हैज डाउट यू कैन आस्क मी। ओके, हाँ, यस वेंकट, यस प्लीज, you have to unmute yourself. You have to unmute yourself. There will be unmute option at your screen. Yeah. Sir, when it is qualified as to amount, if we reduce the amount of 30,000 to 20,000, okay, then what about the rest 10,000 then? Maybe he will give you in cash.
by check, anything, right? That will be depends on the circumstances. What, try to understand, when he has accepted only for 20,000, ऑब्वियसली अगर बिल 30,000 का ड्रॉ किया था, इसका मतलब तो पहले ये बात है कि ही वाज सपोज टू पे अस रुपीज हाउ मच 30,000, बट उसने अगर 20,000 के लिए बिल एक्सेप्ट किया है, मतलब 10,000 में भी आपको कैश में दे रहा होगा, चेक में दे रहा होगा, या मे बी उन दोनों का वो डिसीजन रहेगी वो क्या करेंगे, ठीक है? ऑब्वियसली बिफोर before he qualifies bill for the amount, obviously he will have a word with the drawer. Try to understand, at the end we are doing a business, हम एक isolated transaction नहीं कर रहे. अगर example you are a seller and मैं एक ही मैं कभी तेरे पास आया ही नहीं पहले और मैं तेरे पास आता हूँ, will you first sell me the goods on credit? This is first question. As you are not aware of me, right, you will hesitate to sell the goods on credit to me. तो पहले तो तू कैश पे सेल करने का बोलेगा. अगर मैं कैसे ऐसे वैसे करके मैं तुझे कन्विंस भी करता हूँ क्रेडिट पे सेल कर, राइट? तो ट्राई टू अंडरस्टैंड कि इन दैट केस यू विल नॉट बी एग्री कि तू बोलेगा नहीं नहीं आई वोंट एक्सेप्ट लेस अमाउंट. बट अगर हम दोनों हमेशा ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, राइट, हमारा हमेशा के बिजनेस है, तो तू भी बोलेगा यार जाने दो, ये अगर कम अमाउंट पे कर रहा है तो बाद में पे करेगा. तो बिजनेस है, single transaction is never qualified as a business, and business actually, to be very frank, like runs on a trust. अगर आप ब्रीच करते हो, ब्रीच करना मतलब ट्रस्ट ब्रेक करना, कॉन्ट्रैक्ट ब्रेक करने को लॉ में बोला जाता है ब्रीच ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, ब्रीच ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है? अगर इसे ब्रीच करते हो तो राइट, इट मींस आपकी क्रेडिटेबिलिटी मार्केट में डाउन हो जाएगी, एंड दैट विल हैव ए लॉन्ग टर्म इंपैक्ट ऑन योर बिजनेस. सो जब भी करोगे तो राइट, वी शुड डू बिजनेस इन ए करेक्ट मैनर, इतना ही, बाकी कुछ नहीं, ठीक है? सो ऐसे कुछ नहीं है, वो बाकी वो क्वेश्चन में दिया होगा, डोंट वरी. अगर क्वेश्चन में नहीं दिया होगा तो हमारे लिए वैसे भी, राइट, हमारे लिए वैसे भी इंट्रीज 30,000 के हिसाब से ही होगी, ठीक है? लेट्स स्टार्ट. सो you can see my screen, right? Can you see my screen? Yeah. Now I will go into accounting part, ठीक है? कल का लेक्चर मैंने सुबह अपलोड किया है. आई फॉरगेट टू इंटीमेट यू, मैंने कल का लेक्चर जो है ना वो अपने इंस्टा पे, इंस्टा ही बोल रहा हूँ मैं, राइट, मैंने यूट्यूब पे अपलोड किया है, आप वो चेक कर सकते हो, ठीक है? फॉर सम डेज आई विल अपलोड ऑन यूट्यूब, देयर आफ्टर मैं आई विल शिफ्ट ऑन एकतोम ई लर्निंग प्लेटफॉर्म, अपना जो ऐप है उस पे. और वैसे भी हम फाउंडेशन के लिए वैसे ही कर रहे हैं, अभी हम सब ऐप पे ही काम कर रहे हैं, बट अभी कोई बच्चा एडमिशन ले रहे हैं वगैरह, इसलिए तो मैंने बोला कि एक ही साथ सबका एडमिशन होने के बाद राइट आई कैन डायरेक्टली मूव टू द प्लेटफॉर्म, ठीक है? सो करें स्टार्ट. सो I will take the same example Ram and Sita, that will help us to understand, because अभी तो कोई example सबको समझ में आया है, ठीक है? And उसी example से I will teach you the accounting treatment, ठीक है? So let's start with the accounting treatment, ठीक है? So okay, example, ध्यान देना, एग्जाम्पल लिख रहा हूं. दिस एग्जाम्पल यू हैव टू, एक बार समझ में आ गया, लाइफ में कभी नहीं भूलोगे. ट्राई टू अंडरस्टैंड एग्जाम्पल. राम, अगर आप लिख सकते हो तो मैं आपको एडवाइस करूंगा हमेशा लिखना, इंस्टेड ऑफ जस्ट चेक करना कि क्या चल रहा है. अगर नहीं है, अगर दैट इज नॉट फिजिबल, तो कोई दिक्कत नहीं है, राइट? हम वो क्या बोलते हैं उसको मैनेज कर लेंगे, ठीक है? मैं वैसे भी आपको शेयर करूंगा, कल का मैं शेयर नहीं कर पाया, लेकिन आज मैं दोनों के नोट साथ में ही मैं शेयर कर दूंगा, ठीक है? सो राम sold goods to Sita on 5th May 2020 of rupees 10,000 on credit. On credit.
ठीक है, पहले तो गुड सेल होने चाहिए, क्रेडिट पे होगा ट्रांजैक्शन तो ही बिल का सवाल है, ट्राई टू अंडरस्टैंड, पहले समझ लेना, दिस इज ए क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट, बिल्स ऑफ एक्सचेंज आर क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट। कैश ट्रांजैक्शन के लिए सेटलमेंट हो गई तो कौन डेटर कौन क्रेडिटर, कोई लेने देना नहीं, तो पहले कैश सेल नहीं चलेगा, क्रेडिट सेल्स होना चाहिए, देन एंड नाउ राइट, राम draws a bill, Ram draws a bill on Sita, right, of rupees 10,000, of rupees 10,000, and right, Sita accepts it. हमारे हर क्वेश्चन में सीता को एक्सेप्ट करना ही होगा, राइट टू अंडरस्टैंड, नहीं तो क्वेश्चन होगा ही नहीं, 10 मार्क का क्वेश्चन ऐसे थोड़ी ही बनेगा, आर यू गेटिंग माय पॉइंट, सीता विल डेफिनेटली एक्सेप्ट द बिल, सो ऐसे हमारे टेक्निकली हम सोच सकते हैं अगर सीता ने एक्सेप्ट नहीं होगा तो क्या होगा वगैरह, डिसऑनर फॉर एक्सेप्टेंस वगैरह, ऐसे हो सकता है कि उसने एक्सेप्ट नहीं किया, बट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से शी हैज टू एक्सेप्ट, समझ में आ रहा है, अपना बोर्ड उसको एक्सेप्ट करने को लाइक बोलेगा ही बोलेगा, सो डोंट वरी, सीता एक्सेप्ट्स द बिल ऑन 7th May 2020, क्लियर है, अच्छा यहां तक क्लियर है, नाउ राम राइट, ऐसे लिखता हूं, पास द अकाउंटिंग एंट्रीज, ये चैप्टर पूरा अकाउंटिंग एंट्रीज का, लेजर वगैरह करने होते हैं बट लेजर का इतना नहीं जितना अकाउंटिंग एंट्रीज का है, पास द अकाउंटिंग एंट्रीज in the books of Ram in the books of Ram and Sita, दोनों के बुक्स में सिखा रहा हूं मैं एक ही साथ, सीता राम के समझ में आ गया तो सीता के समझ में आना चाहिए, एग्जैक्टली उल्टा रहेगा, बराबर, आगे पास द अकाउंटिंग एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ राम एंड सीता, राइट, इफ ए राम retains the bill, right, Ram retains the bill till the due date, option 1, B, Ram endorses the bill to Lakshman, ठीक है, सी, राम ने लक्ष्मण को कोई दिया, टाइम पास के लिए नहीं दिया होगा, राम वॉज सपोज टू पे लक्ष्मण ₹10,000, राम को लक्ष्मण को पे करना था, इसलिए राम ने वो बिल थमा दिया, you can use the bills receivable to pay off your liabilities, you can always use your asset to pay off your liability, third option, Ram discounts the bill with bank for ₹9,800, 10,000 का बिल कितने में डिस्काउंट किया, 9,800, ठीक है, 9,800, आगे डी, राम sends the bill to his bank for collection, for collection, मैंने अभी तक ड्यू डेट कैसे कैलकुलेट करनी वो नहीं समझाया, मैं खाली पहले एंट्री समझाऊंगा और क्वेश्चन में ही मैं ड्यू डेट कैसे निकालना है वो समझाते जाऊंगा, ठीक है, ध्यान देना, राम रिटेन्स द बिल, Ram endorses the bill, Ram discounts the bill, Ram sends the bill to the bank for collection, right? Right? Into bracket, bank charges, बैंक फ्री में काम नहीं करेगी, बराबर ना,
बैंक चार्जेस ₹100। ठीक है। अच्छा, राम draws a bill on Sita, right, of ₹10,000, right, and Sita accept the bill. टर्म, बिल के टर्म्स क्या है? 3 months आफ्टर द डेट। ठीक है। नाउ 100% फोकस होना चाहिए। ये एग्जांपल समझ में आ गया तो मैं बोलता हूं आपके लिए चैप्टर 50% डन हो गया। ये एग्जांपल समझ में आ गया तो ठीक है। देन इज इनकैशमेंट एंड डिस्काउंटिंग सेम? आई डोंट नो किसने क्वेश्चन पूछा। यस, इनकैशमेंट बिफोर द ड्यू डेट इज कॉल्ड एज डिस्काउंटिंग। क्या बोला? इनकैशमेंट बिफोर द ड्यू डेट इज कॉल्ड एज, राइट, डिस्काउंटिंग। कल मैंने वही समझाया था। ठीक है, आगे 1 मार्क के लिए क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। इनकैशमेंट बिफोर द ड्यू डेट डैश 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 इज अ डिस्काउंटिंग। सो क्लियर है? सीता honors the bill on due date. On due date. डिसऑनर का थोड़ा इस पे प्रैक्टिस होने पे आई विल स्टार्ट विद द डिसऑनर। डिसऑनर होता है तो क्या होता है? ठीक है, फिलहाल यहां तक हमें चारों केसेस में, चारों ऑप्शंस में हमें क्या करना है? एंट्री समझाना है। ध्यान देना, कुछ डिफिकल्ट नहीं है। एक लिंक है, वो लिंक समझ में आनी चाहिए। ठीक है, ध्यान देना। सॉल्यूशन, ये हमारा राम है और ये सीता है। राम ने सीता को गुड्स सेल किए क्रेडिट पे। 3 months का क्रेडिट पीरियड है बिकॉज बिल टर्म इज 3 months आफ्टर द डेट। आफ्टर द डेट मतलब from 3 months will start from the date of drawal and not from the date of acceptance। ठीक है, आगे राम सीता पे बिल ड्रॉ करेगा। सीता विल एक्सेप्ट द बिल एंड विल गिव बैक टू होम राम। राम के लिए बिल क्या बन जाएगा? बिल्स रिसीवेबल। एंड सीता के लिए बिल क्या बन जाएगा? बिल्स पेएबल। मैं यहाँ पे एक ही चैप्टर है जहां पे मैं गोल्डन रूल्स का यूज करता हूं बिकॉज वो बच्चों को जल्दी समझ में आता है, इसलिए ध्यान देना। राइट, बिल्स रिसीवेबल कम्स इन, I will say debit. Debit the bills receivable. Asset comes in, debit the asset. Bills payable goes out. Sorry, bills receivable goes out. Credit the bills receivable. Asset goes out, credit the bills receivable. Credit that asset. ये रूल खाली याद रखना। I hate these rules, but there is no option while teaching. ठीक है, ठीक है। जब जब हमारे पास बिल आएगा, बिल आएगा मतलब हमारे बिल्स रिसीवेबल है तो हम डेबिट करेंगे, और जब हमारे से बिल जाएगा, बिल आया था तो डेबिट, और जब जाएगा तो हम उसको क्या करेंगे? रिड्यूस करेंगे, क्रेडिट करेंगे। ठीक है, सो ये रूल रहेगा जब भी हम सॉल्व करेंगे। अब ध्यान देना, केस 1, पहले तो याद रखना हमें ड्यू डेट निकालनी है। ड्यू डेट ऑफ द बिल, अच्छा कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं ड्यू डेट बाद में समझाऊंगा, पहले मैं सॉल्व करता हूं। ध्यान देना, केस 1, व्हाट इज केस 1 या केस ए? राइट, मैंने केस ए लिखा था ना, तो केस ए, केस ए इज राइट, हमने गुड सेल किए, ड्रॉवर ने बिल रिसीव किया, बिल आ गया, बिल ड्यू डेट तक साथ में रखा, ड्यू डेट पे बिल प्रेजेंट किया एंड सीता ने ऑनर किया। एक्शन समझ में आ गया? क्या एक्शन है ड्रॉवर के लिए? पहले हमने गुड सीता को सेल किया, फिर सीता से बिल ले लिया, ड्रॉ किया सीता पे, बिल ड्यू डेट तक रखा एंड ड्यू डेट पे बिल प्रेजेंट करके
बिल दे के कैश लेके आ गए, दिल नहीं बोल रहा हूं मैं, बिल बिल दे के कैश लेके आ गए, ठीक है। सो अब ध्यान देना, इन द बुक्स ऑफ राम, इन द बुक्स ऑफ सीता, फर्स्ट राम ने गुड सेल किए सीता को, राम ने गुड सेल किए, क्या एंट्री आएगी राम के बुक्स में, एनीवन? राम सोल्ड गुड्स टू सीता ऑफ ₹10,000, यू हैव टू टेल मी द एंट्री। कोई मुझे एंट्री बोलेगा या कोई एंट्री टाइप करेगा? सिंपल, इसमें व्हाट इज डेबिट एंड व्हाट इज क्रेडिट, इतना भी लिखा तो मोर देन इनफ। राम के बुक्स में क्या आएगा? ओके, आई विल म्यूट। ओके, हाँ यस जॉनी, हाँ जॉनी बोल। हेलो। हाँ, राम के बुक्स में क्या एंट्री आएगी? व्हेन राम सेल्स द गुड्स टू सीता, यस। सर सीता टू सेल्स। एंड सीता के बुक्स में क्या एंट्री आएगी? सर परचेसेस टू राम। परफेक्ट, यस, गुड। राम के बुक्स में, राइट, यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ, क्या एंट्री आएगी? ध्यान देना, राम ने सीता को सेल किया, सीता हमारी डेटर हो गई, डोंट यू एग्री विथ मी? सो डेटर्स इंक्रीज हो गए, डेटर को डेबिट करना है, एंट्री आ जाएगी सीता अकाउंट डेबिट, सीता अकाउंट डेबिट टू सेल्स इनकम क्रेडिट 10,000 10,000, क्या एंट्री आ गई? राइट, एंट्री आ गई, राम के बुक्स में एंट्री आ गई, राइट, सीता टू सेल्स। राम के बुक्स में राम का अकाउंट गलती से मत लिखना, वो गधा भी आपको गधा बोलेगा अगर आप ऐसे करोगे तो। राम के बुक्स में राम का अकाउंट नहीं रहेगा, राम के अकाउंट्स में बुक्स में सीता का अकाउंट रहेगा, सीता के बुक्स में राम का अकाउंट रहेगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? सीता, ये राम के बुक्स में सेल की एंट्री आ गई, सीता के बुक्स में परचेस की एंट्री आ गई, एक्सपेंसेस आर डेबिटेड, सो परचेसेस अकाउंट डेबिट, परचेसेस अकाउंट डेबिट टू सीता। किसको क्रेडिट करेगी? राम। सीता के लिए राम क्रेडिटर है, इसलिए उसने क्रेडिट किया 10,000। अगर कोई मेरा क्रेडिटर है तो मैं उसको क्रेडिट करूंगा, और कोई मेरा डेटर है मैं उसको डेबिट करूंगा। राम के लिए सीता डेटर बन गई इसलिए डेबिट किया, सीता के लिए राम क्रेडिटर बन गया इसलिए क्रेडिट किया। यहां तक क्लियर है? ये 11 की एंट्री है। नाउ लिखना मत, मैं समझा रहा हूं। अगर सीता आपको कैश देती है, अगर सीता आपको कैश देती है तो आपके बुक्स में एंट्री क्या आएगी? लिखना मत, मैं लिख रहा हूं, बाद में डिलीट कर दूंगा। सीता गिव्स यू कैश, एंट्री आती है कैश अकाउंट डेबिट 10,000। सीता आपको सेटल कैसे कर सकती है? ट्राई टू अंडरस्टैंड। सीता गिव्स यू कैश, तो आप बोलोगे सीता कैश अकाउंट डेबिट टू सीता, बराबर। सीता मे गिव यू चेक, अगर वो आपको चेक देगी तो क्या एंट्री आएगी? बैंक अकाउंट डेबिट। 11th में हमने दो तरीके देखे सेटलमेंट के। 11th में एक रिसीव द कैश एंड दूसरा रिसीव द चेक। अब 12th के फर्स्ट चैप्टर में ये देख रहे कि देयर इज अनदर वे ऑफ अ सेटलमेंट। व्हाट इज अ सेटलमेंट? हम सीता पे बिल ड्रॉ करेंगे एंड सीता विल गिव अस हर एक्सेप्टेंस, सीता हमें उसकी एक्सेप्टेंस देगी। ऑब्वियसली नरेशन रहेगा, फर्स्ट एंट्री में नरेशन रहेगा, बीइंग गुड सोल्ड ऑन क्रेडिट। अब सीता पे हमने बिल ड्रॉ किया एंड सीता ने हमें बिल दे दिया, तो ट्राई टू अंडरस्टैंड। कैश आती तो कैश अकाउंट डेबिट, चेक आता तो बैंक अकाउंट डेबिट, दोनों नहीं। she gave her acceptance, her acceptance for her is bills payable, her acceptance to me is a asset। मेरे लिए bills comes in, bills receivable comes in, bills receivable account debit। क्या बोला मैंने? पूरा लिखना होता है bills receivable, मैं यहाँ पे स्पेस कंस्ट्रेंट की जगह वजह से मैं bills receivable लिख रहा हूँ। bills receivable comes in debit to सीता अकाउंट क्रेडिट 10,000। क्या होगा देखो, सीता का अकाउंट ओपन हुआ था फर्स्ट एंट्री में, वो डेटर बन गई थी, एंड सेकंड एंट्री में उसका अकाउंट क्लोज हो गया। सीता ने भले ही हमें कैश नहीं दी है, फिर भी उसका अकाउंट क्लोज हो चुका है। क्यों क्लोज हुआ है? राइट, बिकॉज उसने हमें उसका एक्सेप्टेंस दिया है। अब हमें सीता से वास्ता नहीं, हमारे लिए वो बिल से वास्ता है, हमारे पास बिल आ चुका है। ट्राई टू अंडरस्टैंड, हम ये बिल, ट्राई टू अंडरस्टैंड, सीता उसको पे करेगी जिसके पास से बिल होगा। ट्राई टू अंडरस्टैंड, इसका मतलब अगर आपको समझ में आता है, बिल्स रिसीवेबल एंड डेटर्स आर वन एंड द सेम, बिल्स रिसीवेबल एंड डेटर्स आर वन एंड द सेम। वो डेटर्स क्यों होते हैं? बिकॉज हम उनको क्रेडिट पे सेल करते हैं। वो बायर्स, देखो मैं क्या बोल रहा हूं,
क्या बोल रहा हूं, ध्यान देना, बायर्स, देयर आर टू टाइप्स ऑफ बायर्स, वन जो कैश पे लेते हैं, राइट, कैश पे लेते हैं, दूसरे बायर्स जो क्रेडिट पे लेते हैं, बराबर, और जो क्रेडिट पे लेते हैं वो हमारे कौन बन जाते हैं, डेटर्स, बराबर। कोई डेटर्स हमें बिल्स देते हैं तो वो बन गए बिल्स रिसीवेबल। सो मैं क्या बोल रहा हूं, ध्यान देना, इसकी वजह से क्या होगा पता है, डेटर्स कम होंगे एंड बिल्स रिसीवेबल इंक्रीज होंगे। इस ट्रांजैक्शन की वजह से डेटर्स कम हो गए, सीता वाज माय डेटर, डेटर कम हो गए और क्या इंक्रीज हो गए, बिल्स रिसीवेबल। मतलब बिल्स रिसीवेबल आर द फॉर्म ऑफ डेटर्स ओनली, वो डेटर्स जिन्होंने उनका एक्सेप्टेंस हमें दिया है वो बिल्स रिसीवेबल में आके बैठ गए, खाली नाम चेंज हुआ है। टू बी वेरी फ्रैंक, सपोज दिस इज माय बैलेंस शीट, ट्राई टू इमेजिन, ये राम की बैलेंस शीट है, हमने सीता को सेल किया, बराबर, तो सीता डेटर्स में आके बैठ गए हमारे 10,000, सीता इज माय डेटर, ठीक है, सीता इज माय डेटर। अब सीता अगर हमें कैश देती है तो कैश एसेट पे इंक्रीज हो जाएगी 10,000 से, डोंट यू एग्री विथ मी, यस। अगर सीता हमें चेक देती है तो बैंक बैलेंस इंक्रीज हो जाएगा 10,000 का। अगर वो हमें बिल्स देती है तो क्या इंक्रीज हो जाएगा, बिल्स रिसीवेबल। डेटर्स कम होंगे एंड बिल्स रिसीवेबल इंक्रीज हो गए। एसेट साइड पे क्लासिफिकेशन चेंज हो रहा है, नाउ शी इज नो लॉन्गर डेटर, शी इज अ बिल्स रिसीवेबल। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? डेटर्स, राइट, डेटर्स कम होंगे, बिल्स रिसीवेबल इंक्रीज होंगे। एक एसेट कम होगी, दूसरी एसेट इंक्रीज होगी। डेटर्स एसेट कम होगी, बिल्स रिसीवेबल एसेट इंक्रीज होगी, इसलिए एंट्री आ गई बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू सीता। क्लियर है? आगे सीता के बुक्स में क्या एंट्री आएगी? अब देखो, सीता के बुक्स में, हमने राम के बुक्स में समझा, सीता के बुक्स में अगर सीता राम को कैश देती तो एंट्री क्या आती, ध्यान देना, राम अकाउंट डेबिट, ऑप्शन बोल रहा हूं सेटलमेंट के, राम अकाउंट डेबिट 10,000, एक ऑप्शन है कैश दे दो, टू कैश, गिव कैश टू द राम 10,000। नो सर, हम कैश नहीं देने वाले, अगर हम चेक देते तो क्या एंट्री आएगी, टू बैंक। सर हम कैश भी नहीं दे रहे, चेक भी नहीं दे रहे, हम क्या कर रहे हैं, हम उसको हमारा एक्सेप्टेंस दे रहे हैं। सर हमारा एक्सेप्टेंस दे रहे हैं, हमारा एक्सेप्टेंस हमारे लिए क्या होता है, बिल्स पेएबल होता है। सो टू बिल्स पेएबल। यहां पे क्या हो गया पता है, राम मेरा क्रेडिटर था, राम मेरी लाइबिलिटी था, अब राम चला गया और दूसरी लाइबिलिटी आ गई, एक लाइबिलिटी कम हो गई, दूसरी लाइबिलिटी इंक्रीज हो गई, क्रेडिटर्स कम हो गए, बिल्स पेएबल इंक्रीज हो गए। मतलब बिल्स पेएबल वो क्रेडिटर्स होते हैं जिनको हमने हमारा एक्सेप्टेंस दिया होता है। अगर मेरे बुक्स में बिल्स पेएबल है, इसका मतलब वो मेरे क्रेडिटर ही है, बट मैंने उनको मेरा एक्सेप्टेंस दिया है। समझ में आ रहा है? एक लाइबिलिटी चली गई, क्रेडिटर्स चले गए और क्या आ गया, बिल्स पेएबल। अब सीता के लिए राम से वास्ता नहीं है क्योंकि राम का अकाउंट क्लोज हो चुका है। सीता के बुक्स में पहले राम 10,000 क्रेडिट था, अब 10,000 डेबिट है, नेट इज 0। सीता के बुक्स में राम का अकाउंट क्लोज हो चुका है। नाउ अब क्या बोल रहा हूं, ध्यान देना, मतलब अब नेक्स्ट 3 मंथ्स सीता टेंशन फ्री। क्यों? बिकॉज राम विल नॉट आस्क हर पेमेंट एंड एनीवन ऑन बिहाफ ऑफ राम विल नॉट आस्क हर पेमेंट। अब राम पैसे मांगने कब आएगा, या राम के बिहाफ पे दूसरा को कब पैसे मांगने कब आएगा, एक्सपायरी होने पे, जो भी एक्सपायरी डेट रहेगी 3 मंथ्स के बाद, वह उस दिन पे आएगा। बीच में अगर इसके बीच में राम और सीता मिलते हैं तो भी वो डेटर क्रेडिटर नहीं है, क्योंकि राम का अकाउंट सीता के बुक्स में क्लोज हुआ है एंड सीता का अकाउंट राम के बुक्स में क्लोज हुआ है। राम के लिए अब बिल्स पेएबल है, सीता के लिए कौन है, बिल्स पेएबल है। राम को पैसे लेने हैं, सीता को पैसे देने हैं, एंड दैट इज थ्रू बिल्स। सो वंस डेटर एक्सेप्ट द बिल, क्रेडिटर के लिए डेटर चला गया, बिल्स रिसीवेबल आ गया, एंड डेटर के लिए क्रेडिटर चला गया और क्या आ गया, बिल्स पेएबल आ गया। समझ में आ रहा है? खाली एसेट का क्लासिफिकेशन या लायबिलिटी का क्लासिफिकेशन चेंज हो रहा है। डेटर के लिए पहले, मतलब राम के लिए पहले सीता से लेने थे, अब सीता की जगह क्या आ गया, कागज आ गया, बिल आ गया। एंड सीता के लिए पहले राम को पे करना था, अब राम की जगह एक कागज आ गया जिसको वो बोल रही है बिल्स पेएबल। समझ में आ रहा है? सो राम के बुक्स में डेटर्स डिक्रीज हुए, बिल्स रिसीवेबल इंक्रीज हो गए, एंड सीता के बुक्स में बिल्स पेएबल डिक्रीज हो गए, क्रेडिटर्स डिक्रीज हो गए एंड बिल्स पेएबल इंक्रीज हो गए। आगे
अब ऑन ड्यू डेट 3 मंथ्स कुछ नहीं होगा बिकॉज राम ने बिल रिटर्न किया है, डेली राम देखता है अब ड्यू डेट आएगी, ड्यू डेट आएगी, ड्यू डेट आएगी, और ऐसे कर करके 3 मंथ्स चले गए। ड्यू डेट पे राम will go to Sita. Ram has to go. Sita will not come. Ram has to go and present the bill. Ram has to go. Drawer has to go and present the bill. Sita को बोलेगा, सीते ये आज 3 मंथ हो गए, राइट, ये बिल की ड्यू डेट है और तू अब मुझे 10,000 पे कर। सीता will pay 10,000 to whom? राम। वो ऑनर कर देगी तो राम will receive the cash. राम के बुक्स में कैश आ गई। कैश comes in debit. Cash increases debit. कैश इंक्रीजेस डेबिट। 2 बिल्स रिसीवेबल कैश में कन्वर्ट हो गया। जो बिल्स रिसीवेबल था इतने दिन पहले डेटर्स थे, डेटर्स कन्वर्ट हो गए बिल्स रिसीवेबल में, बिल्स रिसीवेबल कन्वर्ट हो गए कैश में, राइट। 2 बिल्स रिसीवेबल गोज आउट, ऑनर हो गया 10,000 10,000, बिल्स रिसीवेबल से कैश आ गई 10,000 10,000। अब तुम राम के लिए फ्लो देखना, राम ने सेल किया, मैं ऐसे लिखता हूं, राम ने सेल किया इसलिए डेटर्स बने, बराबर, डेटर्स बने इसलिए उन्होंने हमें बिल्स दे दिए, बिल्स रिसीवेबल, और ये बाद में बिल किस में कन्वर्ट हो गया? कैश में। सेल किया, डेटर टू सेल, बराबर, फिर डेटर ने बिल दिया, बिल्स रिसीवेबल टू डेटर्स, एंड फिर वो बिल्स कैश में कन्वर्ट हो गया, कैश टू बिल्स रिसीवेबल। राम के बुक्स में डेटर्स क्लोज हो चुका था, बिल्स रिसीवेबल भी क्लोज हो चुका है। नेट एंट्री क्या हो गया राम के बुक्स में? कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट क्रेडिट। अलग अलग फॉर्म के थ्रू असेट मूव हो रही, पहले डेटर्स, फिर बिल्स रिसीवेबल, और फिर कहां पे? कैश। जिनको बैलेंस शीट थोड़ी इमेजिन करने आती है उनके लिए ध्यान देना, बिल्स रिसीवेबल, इंप्रूव योर इमेजिन स्किल, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। दिस इज बैलेंस शीट। पहले डेटर्स बने 10,000 के, बाद में ये डेटर्स कैंसिल होके क्या बन गए? बिल्स रिसीवेबल। फिर ये बिल्स कैश में कन्वर्ट हो गए, बिल्स रिसीवेबल चले गए और क्या आके बैठे? कैश। इनमें हमें सीता से कैश आनी थी, यस कैश आ गई, बट घूमा फिरा के कैश आ गई। पहले डेटर्स, फिर बिल्स रिसीवेबल, फिर कैश। आई थिंक ये समझ में आया होगा। और ये जो मैंने अभी फ्लो निकाला है ये समझ में आना बहुत इंपॉर्टेंट है। सेल हुआ इसलिए डेटर्स बने, डेटर्स ने हमें उनका एक्सेप्टेंस दिया जो हमारे लिए बिल्स रिसीवेबल है, और बाद में वो बिल्स रिसीवेबल ऑनर होने पे हमें क्या मिल गई? कैश। तो फर्स्ट एंट्री में डेटर जनरेट हुए, सेकंड एंट्री में डेटर्स कम होके बिल्स बन गए, थर्ड एंट्री में बिल्स कम होके कैश बन गई। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? इफ एनीवन हैज डाउट प्लीज आस्क मी। नाउ इसके बुक्स में किसके? सीता। सीता ड्यू डेट पे राम आएगा, ड्यू डेट पे राम आएगा और सीता उसको 10,000 पे करेगी। भले ही वो राम को पे कर रही है बट उसके बुक्स में राम टू कैश एंट्री नहीं आएगी, क्योंकि उसके बुक्स में राम का अकाउंट ऑलरेडी क्लोज हो चुका है। उसके बुक्स में राम नहीं है। अब राम की जगह किसने ले ली? बिल्स पेएबल ने ली थी। क्रेडिटर की जगह किसने ली थी? बिल्स पेएबल ने ली थी। नाउ फॉर हर शी हैज ऑनर्ड बिल्स पेएबल, शी हैज पेड बिल्स पेएबल, तो नाउ शी पेज बिल्स पेएबल। तो बिल्स पेएबल अगर पेड होता है, लायबिलिटी पे होती तो लायबिलिटी टू कैश एंट्री आती है। शी ऑनर्ड बिल्स पेएबल, बिल्स पेएबल पहले क्रेडिट था, लायबिलिटी थी, पेड होने पे डेबिट हो जाएगा, कैंसिल हो गया, डेबिट टू कैश। 10,000 10,000। बस इतनी एंट्रीज। सीता के लिए फ्लो समझते हैं। सीता ने गुड्स परचेस किए, बराबर, सीता ने गुड्स परचेस किए, इस राइट, इसलिए क्रेडिटर्स हो गए। सीता ने परचेस किए इसलिए क्रेडिटर्स हो गए। फिर क्रेडिटर्स को राइट उसने एक्सेप्टेंस दिया इसलिए क्रेडिटर्स किस में कन्वर्ट हो गए? बिल्स पेएबल में। एंड फिर वो बिल उसने ऑनर किया, मतलब उसने क्या दे दी? कैश। फर्स्ट एंट्री परचेसेस टू क्रेडिटर्स, फिर क्रेडिटर्स टू बिल्स पेएबल, एंड देन बिल्स पेएबल टू कैश। यू कैन सी क्रेडिटर्स क्लोज हो चुके हैं, बिल्स पेएबल क्लोज हो चुके हैं, नेट क्या एंट्री बची? परचेसेस टू कैश। बट परचेस आज हो रहा है, कैश 3 मंथ्स के बाद आ रही है। सो ये देयर आर 2 डिफरेंट ट्रांजैक्शंस, दे गोस थ्रू वेरियस इवेंट्स। आई थिंक ये क्लियर होगा। इफ एनीवन हैज डाउट प्लीज आस्क मी, आपके सामने आंसर है। यू हैव चांस टू आस्क मी द क्वेश्चन। जो भी क्वेश्चन है
प्लीज आस्क मी, डोंट कीप एनी क्वेश्चन. सो ये ऑप्शन 1 था, रिटेन द बिल टिल ड्यू डेट. क्या क्या हुआ, गुड सेल किए, बिल राम के लिए देखो, गुड सेल किए, बिल आ गया, 3 मंथ वैसे ही, 3 मंथ के बाद गया, कैश दे, बिल दे के कैश लेके आ गया, दैट्स इट. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? राइट, इफ यू हैव डाउट प्लीज आस्क मी. Please ask me. So I mean, right? क्या चेंज होता है हमारा, राइट? नेचर चेंज होता है. राम के लिए डेटर्स आए, डेटर्स बिल्स रिसीवेबल में कन्वर्ट हो गए. तो बहुत बच्चे मुझे 11th में पूछते थे, सर बिल्स रिसीवेबल क्या? तब मैं बोलता था कि मे बी तब समझ में नहीं आएगा, बट नाउ दिस इज द राइट टाइम. बिल्स रिसीवेबल वो डेटर्स होते हैं जिन्होंने आपको उनका एक्सेप्टेंस दिया होता है. बिल्स रिसीवेबल आपकी एसेट होती है और वो बिल्स बाद में कैश में कन्वर्ट हो जाते हैं. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? एंड सर बिल्स पेएबल क्या होते हैं? बिल्स पेएबल वो क्रेडिटर्स होते हैं जिनको हमने हमारा एक्सेप्टेंस दिया होता है. मतलब टू दैट एक्सटेंट क्रेडिटर्स कम होके नई लायबिलिटी बन जाती है. लायबिलिटी तो वही है, पे तो करना ही है, लायबिलिटी किधर चली नहीं जाती है, खाली लायबिलिटी का नाम चेंज हो गया, नेचर चेंज हो गया. बिल्स क्रेडिटर्स नहीं, अब बिल्स पेएबल. समझ में आ रहा है? आर यू गेटिंग माय पॉइंट और नो? सो दिस इज केस 1. ठीक है, नाउ वी विल मूव टू केस 2. व्हाट इज द केस 2? Ram endorses bill to the Lakshman and due date Sita honors the bill. ठीक है, केस 2 या केस बी. Those who are trying, who want to pursue CA, CS, right? उनके लिए ये चैप्टर उनके CA and CS के भी सिलेबस में. तो आज करोगे ऐसा चैप्टर करना है कि लाइफ टाइम वो भूले ना. ठीक है, एंड वी हैव जस्ट स्टार्टेड केस बी, जिसमें राम ने बिल ड्रॉ किया था सीता पे, पहले सेल किया, फिर सीता पे बिल ड्रॉ किया, बराबर. सीता ने बिल एक्सेप्ट किया, राम के लिए वो बिल्स रिसीवेबल बन गया, सीता के लिए वो बिल्स पेएबल बन गया. ठीक है, राम ने ये बिल लक्ष्मण को दिया, लक्ष्मण ड्यू डेट पे सीता के पास जाएगा एंड सीता विल पे टू हुम? लक्ष्मण. ठीक है, जब राम लक्ष्मण को बिल देगा, ट्राई टू अंडरस्टैंड, जब राम लक्ष्मण को बिल देगा, बोलेगा देख इस बिल पे सीता ने लिखा है शी विल पे टू मी और माय ऑर्डर. नाउ आई, राइट, आई ट्रांसफर बिल टू यू, आई मेक यू ओनर ऑफ द बिल, मैं एंडोर्स कर रहा हूं, तो सीता विल पे टू यू. तो सीता से तू कैश ले और तेरे पास रख, बिकॉज वैसे भी मैं सीता से लेके तुझे देने वाला था. तो तू क्या काम कर, डायरेक्टली सीता से कैश ले ले, तो इसमें टाइम भी कम लगेगा और क्या हो जाएगा, राम के लिए सीता से पैसे आ गए एंड उसको लक्ष्मण को दे दिए. तो विदाउट मूवमेंट कैश ट्रांजैक्शंस क्या हो जाएंगे, सेटल हो जाएंगे. लक्ष्मण का क्वेश्चन होता है अगर सीता पे नहीं करेगी तो क्या? डाउट बराबर है. आज उसने बिल ले लिया राम से, क्या बोल के कि सीता पे करेगी. एक्चुअली लक्ष्मण को तो किससे लेना चाहिए, राम से, बट राम बोल रहा है तू सीता से ले, बट लक्ष्मण बोलता है अगर भाभी पे नहीं करेगी तो क्या होगा. तो राम बोलता है भैया क्यों है, भैया लेके देगा तुझे. मतलब राम बोलता है मैं सीता से लेके तुझे पेमेंट करूंगा. तो अगर सीता डिसऑनर्स द बिल, राम विल रिकवर फ्रॉम सीता एंड विल पे टू हुम? लक्ष्मण. ठीक है, तो लक्ष्मण वैसे भी दोनों केसेस में सिक्योर्ड है. अगर सीता पे करते तो अच्छी बात है, सीता नहीं पे करेगी तो कौन पे करेगा, राम पे करेगा. क्लियर है? एंड राम को टेंशन रहेगा क्या, अगर सीता नहीं पे करती है तो मुझे सीता से लेके लक्ष्मण को देना पड़ेगा. ठीक है, सो अब हम इसकी इंटरेस्ट समझने वाले हैं. हमारे केस में हुआ है राम ने लक्ष्मण को भी इंडोर्स किया है, लक्ष्मण ड्यू डेट पे सीता के पास जाएगा, सीता उसको कैश देगी. राइट, लेट्स स्टार्ट. In the books of Ram, in the books of Sita. Put yourselves in their position. राम के, जब हम राम के बुक्स में एंट्रीज पास करते तो हम जैसे राम है, मतलब ऐसे बाण बीन लेके खड़ा नहीं रहना है. ठीक है, मतलब हमें राम के जैसे सोचना है. अगर मैं राम हूं तो मैं क्या करता. ठीक है, ए फर्स्ट एंट्री, वही
पहले राम ने गुड सेल किए सीता को, तो एंट्री आएगी सीता टू सेल्स, डेटर अकाउंट डेबिट टू सेल्स 10,000 और दोनों के बुक्स में साथ में लिखते जाओ, मतलब आपको क्लिक होता जाएगा। राम के बुक्स में सेल की एंट्री आ गई, मतलब सीता के बुक्स में क्या एंट्री आएगी, परचेसेस अकाउंट डेबिट 10,000 टू राम अकाउंट क्रेडिट 10,000। राम के लिए सीता डेटर है, इसलिए राम ने सीता को डेबिट किया। सीता के लिए राम क्रेडिटर है, इसलिए सीता ने राम को क्रेडिट किया। ठीक है, नेक्स्ट सेकंड, करेक्ट स्टार्ट, यस सेकंड। राम ने सीता पे बिल ड्रॉ किया, ये दो ट्रांजैक्शन हमेशा रहेंगे। राम विल ड्रॉ बिल ऑन सीता, सीता विल एक्सेप्ट द बिल, तो राम रिसीव्ड द बिल, राम के लिए बिल रिसीवेबल कम्स इन डेबिट, बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट 10,000 टू क्रेडिट द गिवर बोलो चाहिए तो 10,000। नाउ यहाँ पे क्या हो गया, डेटर्स कम हो गए, डेटर्स डेबिट होते कम हो गए मतलब क्रेडिट हो गए, एंड बिल्स रिसीवेबल असेट होते डेबिट हो गए मतलब इंक्रीज हो गए। बैलेंस शीट में क्या मूवमेंट होगी, बैलेंस शीट में क्लासिफिकेशन चेंज होगा, डेटर्स 10,000 से कम होंगे एंड बिल्स रिसीवेबल 10,000 से इंक्रीज हो गए। बैलेंस शीट टोटल विल नॉट चेंज, बैलेंस शीट टोटल वही रहेगी, बिकॉज दिस इज लायबिलिटीज, दिस इज एन असेट। लायबिलिटी ये है, असेट ये, दोनों इक्वल है। अब क्या होंगे, डेटर्स कम होंगे और उतने से ही बिल्स रिसीवेबल इंक्रीज होंगे, तो बैलेंस शीट टोटल इस ट्रांजैक्शन की वजह से चेंज होती नहीं। ठीक है, आगे सीता ने, अब सीता के पॉइंट से देखो, सीता ने बिल एक्सेप्ट किया, सीता के लिए वो लायबिलिटी है, एक लायबिलिटी जाएगी दूसरी लायबिलिटी आएगी। नाउ अगर वो राम को कैश देती तो राम टू कैश, चेक देती तो राम टू बैंक, अगर राम को खुद का एक्सेप्टेंस देती है तो एंट्री आएगी राम टू बिल्स पेएबल, टू बिल्स पेएबल 10,000। राम के बुक्स में सीता का अकाउंट क्लोज हुआ है, सीता के बुक्स में राम का अकाउंट क्लोज हुआ है। सीता का अकाउंट रिप्लेस हुआ है बिल्स रिसीवेबल से, राम का अकाउंट रिप्लेस हुआ है बिल्स पेएबल से। अच्छा, अब थर्ड, ठीक है, थर्ड अब ध्यान देना, राम के पास बिल आ गया, राम ने बिल किसको दिया, लक्ष्मण को दिया, राम ने बिल लक्ष्मण को दिया। नाउ इस ट्रांजैक्शन में देयर आर टू पार्टीज, कौन है, एक राम है और लक्ष्मण है। जब राम उसका बिल इंडोर्स करेगा, दैट इज अ ट्रांजैक्शन बिटवीन राम एंड लक्ष्मण, तो इसकी एंट्री किसके बुक्स में आएगी, एक राम के बुक्स में आएगी और एक लक्ष्मण के बुक्स में आएगी। अगर सीता इस ट्रांजैक्शन में इन्वॉल्व नहीं है, सीता राम को बिल एक्सेप्ट करके देगी, फिर राम को उस बिल के साथ जो करना है वो राम करे। सीता को अब ड्यू डेट की राह देखनी कि कभी ना कभी राम या राम का कोई ना कोई आएगा और हम उसको पे करेंगे। समझ में आ रहा है? सो सीता, जब राम ने लक्ष्मण को बिल इंडोर्स किया, उसकी एंट्री राम के बुक्स में आएगी एंड लक्ष्मण के बुक्स में आएगी। हमें लक्ष्मण मतलब इंडोर्सी के बुक्स में एंट्री पास नहीं करना है, सीता के बुक्स में वो एंट्री आएगी नहीं, बिकॉज सीता इज नॉट इन्वॉल्व इन दिस ट्रांजैक्शन। तो नाउ राम एंडोर्सेस बिल टू हुम, लक्ष्मण। लक्ष्मण को अगर राम कैश देता है तो राम के बुक्स में आएगी लक्ष्मण टू कैश। अगर लक्ष्मण को चेक देता है तो राम के बुक्स में रहेगा लक्ष्मण टू बैंक। क्रेडिटर है ना, आप उसको पेमेंट करोगे। एंड तीसरा ऑप्शन, आज हम सीख रहे हैं कि हम हमारे क्रेडिटर्स को कैश एंड बैंक के सिवा भी पेमेंट कर सकते हैं। कैसे? एक बिल एक्सेप्ट करके, जैसे सीता ने उसका क्रेडिटर जो राम है उसको कैसे सेटल किया, बाय एक्सेप्टिंग द बिल। सो वन ऑप्शन टू सेटल योर क्रेडिटर्स इज एक्सेप्ट द बिल, और दूसरा ऑप्शन एंडोर्स द बिल। राम एक्सेप्ट नहीं कर रहा है बिल, राम उसके पास जो बिल आया है वो एंडोर्स कर रहा है। सो वी आर लर्निंग 4 ऑप्शंस और 4 वेज ऑफ सेटलमेंट। वन ऑप्शन कैश, एवरीबडी नोज। दूसरा ऑप्शन चेक देख के सेटल करना, राइट, एवरीबडी नोज। तीसरा ऑप्शन बिल एक्सेप्ट करके, एंड फोर्थ ऑप्शन बिल एंडोर्स करके। अब राम यहाँ पे क्या कर रहा है, राम उसको लक्ष्मण को बिल दे रहा है, बट ये बिल लक्ष्मण ने ड्रॉ नहीं किया है, राम एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, राम एंडोर्स कर रहा है। देयर इज हिंदुस्तान पाकिस्तान, एक्सेप्टेंस एंड एंडोर्समेंट इज हिंदुस्तान पाकिस्तान। एक्सेप्टेंस सीता ने किया इसलिए सीता के लिए बिल्स पेएबल है, राम एंडोर्स कर रहा है,
राम बिल लक्ष्मण को दे रहा है, तो अब जब वो लक्ष्मण को बिल देगा तो एंट्री आ जाएगी लक्ष्मण अकाउंट डेबिट, लक्ष्मण अकाउंट डेबिट 10,000 टू कैश देता टू कैश, कैश गोज आउट क्रेडिट, चेक देता है तो टू बैंक, खुद का एक्सेप्टेंस देता है टू बिल्स पेएबल, बट वो भी नहीं है, किसी और का एक्सेप्टेंस चिपकाना बोलते हैं एंडोर्समेंट। क्या बोला मैंने? किसी और का एक्सेप्टेंस हमारे क्रेडिटर को चिपकाने को बोलते हैं एंडोर्समेंट। हम सीता का एक्सेप्टेंस लक्ष्मण को चिपका रहे हैं, हमारा खुद का एक्सेप्टेंस नहीं दे रहे। ट्राई टू अंडरस्टैंड। सो दिस इज बिल्स रिसीवेबल गोज आउट। हमने ये बिल लक्ष्मण को दिया, बोले लक्ष्मण जा ये बिल तेरे तुझे इंडोर्स कर रहा हूं, बिल्स रिसीवेबल गोज आउट। जब बिल आया डेबिट, जब बिल दिया क्रेडिट। सो ध्यान देना, राइट? इसके लिए राम के बुक्स में एंट्री नहीं, राम के बुक्स में एंट्री आएगी, सीता के बुक्स में ना 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 नो एंट्री। सीता के बुक्स में इसकी एंट्री आएगी नहीं, बिकॉज सीता इज नॉट इन्वॉल्व इन दिस ट्रांजैक्शन। राम एंड लक्ष्मण के बुक्स में एंट्री आएगी, सीता नहीं। फोर्थ, ड्यू डेट पे लक्ष्मण विल गो टू सीता। सीता बोलेगी लक्ष्मण भैया कैसे आना हुआ, राइट? लक्ष्मण बोलेगा कि राम ने बिल मुझे इंडोर्स किया था और आज उसकी ड्यू डेट है। अच्छा, और सीता विल पे 10,000 अगेंस्ट दैट एक्सेप्टेंस। लक्ष्मण वो कैश लेगा, ट्राई टू अंडरस्टैंड। लक्ष्मण सीता के पास जाएगा, लक्ष्मण वो कैश लेगा, वो कैश लक्ष्मण की है बिकॉज लक्ष्मण उस बिल का ओनर था। अब इस बीच में मतलब इस ट्रांजैक्शन में राम का कोई इन्वॉल्वमेंट है क्या? नहीं है। लक्ष्मण वाज सपोज्ड टू कलेक्ट द कैश, लक्ष्मण सपोज कलेक्टेड द कैश। तो वो ट्रांजैक्शन सीता एंड लक्ष्मण के बीच में। और जैसे राम ने वादा किया था कि सीता पे करेगी, वैसे सीता ने भी वो वादा निभाया है, सीता हैज पेड टू लक्ष्मण। सो इसलिए राम के बुक्स में अब एंट्री आएगी क्या? नहीं, नो एंट्री। बट सीता के बुक्स में एंट्री आएगी बिकॉज उसने लक्ष्मण को 10,000 दिए। किसके अगेंस्ट दिए? लक्ष्मण टू कैश एंट्री नहीं आएगी। सीता का लक्ष्मण से कोई वास्ता ही नहीं था। सीता के लिए कौन है? बिल्स पेएबल है। शी पेड बिल्स पेएबल, बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिट टू कैश 10,000 10,000। शी सेटल्ड हर लायबिलिटी टुवर्ड्स बिल्स पेएबल। सो देखो अब आपके सामने एंट्रीज है। राम ने सीता को सेल किया, फिर बिल रिसीव्ड किया, फिर बिल लक्ष्मण को दिया। जब वो बिल ऑनर होगा, क्या बोल रहा ध्यान देगा, एंडोर्स बिल जब ऑनर होगा, एंडोर्स बिल किया था लक्ष्मण को, वो बिल ऑनर हो गया, तो ड्रॉवर के बुक्स में एंट्री आएगी क्या? ऑनर की एंट्री आएगी क्या? नहीं आएगी, बिकॉज दैट इज अ ट्रांजैक्शन बिटवीन लक्ष्मण एंड सीता। अब सीता के बुक्स में देखो, शी परचेज द गुड्स, शी एक्सेप्टेड द बिल। उसके बाद उसको कोई लेना देना नहीं, उस राम उस बिल के साथ क्या करे। एंडोर्स बिल की एंट्री ड्रॉवी के बुक्स में आती नहीं, ड्रॉवी ड्यू डेट तक शांत। अब डायरेक्टली ड्यू डेट पे देखेंगे, बिल ऑनर करने की एंट्री आएगी, बिल्स पेएबल टू कैश। इफ एनीवन हैज डाउट प्लीज आस्क मी। अब देखो, आप बोलोगे सर लक्ष्मण को डेबिट हुआ है, इसके पहले लक्ष्मण को क्रेडिट हुआ होगा, हमने लक्ष्मण से गुड्स परचेस किए होंगे, वो एंट्री तब हुई होगी परचेसेस टू लक्ष्मण, एंड लक्ष्मण को आज पे कर रहे हैं, लक्ष्मण टू बिल्स रिसीवेबल। समझ में आ रहा है या नहीं समझ में आ रहा है? इफ एनीवन हैज डाउट प्लीज आस्क मी। समझ में आया? सो मैं यहां पे लिखता हूं मोड्स ऑफ सेटलमेंट। मोड्स ऑफ सेटलमेंट, अगर आपको कोई ट्रांजैक्शन सेटल करना है तो आप कैसे सेटल कर सकते हो? मोड्स ऑफ सेटलमेंट। in the books of creditor, क्रेडिटर, क्रेडिटर को पैसे लेने हैं ना, वो कैसे ले सकता है? एंड इन द बुक्स ऑफ डेटर, क्रेडिटर में रिसीव कैश, अगर कैश आएगी तो कैश अकाउंट डेबिट, बराबर। ही में रिसीव चेक्स, बैंक अकाउंट या आरटीजीएस एनईएफटी वगैरह, उसके थ्रू बैंक में डायरेक्टली पैसे आ जाएंगे। गूगल पे वगैरह करोगे तो यूपीआई के थ्रू डायरेक्टली बैंक में पैसे पे करोगे, लाइक आज आपने फीस वैसे ही पे की मैक्सिमम लोगों ने, ठीक है। बैंक अकाउंट डेबिट,
या यू मे रिसीव बिल, आप बिल ड्रॉ करोगे, बिल रिसीवेबल, क्रेडिटर ड्रॉज द बिल टू डेटर अकाउंट क्रेडिट। आपका डेटर आपको कैश दे सकता है, चेक दे सकता है या बिल दे सकता है। क्या कर सकता है? कैश, चेक या बिल। वो बिल उसने एक्सेप्ट करके दिया होगा या उसने किसी और का बिल हमें चिपकाया होगा। जैसे लक्ष्मण हमारा क्रेडिटर था, उसको बिल दे दिया, लेकिन वो बिल राम ने एक्सेप्ट नहीं किया था, राम ने किसी और से लिया था। तो एट द एंड लक्ष्मण के लिए एज लॉन्ग एज वी रिसीव द बिल, फिर वो राम हो, लक्ष्मण हो, आगे विभीषण हो, सुग्रीव हो, सबके लिए वो बिल रिसीवेबल है, सबके लिए वो क्या है? बिल्स रिसीवेबल है। खाली एंड खाली सीता के लिए वो बिल्स पेएबल है। राम ने लक्ष्मण को दिया, लक्ष्मण के लिए भी बिल्स रिसीवेबल कम्स इन, बाद में उसने सुग्रीव को दिया, तो लक्ष्मण के लिए बिल्स रिसीवेबल गोज आउट एंड सुग्रीव के लिए बिल्स रिसीवेबल कम्स इन। सुग्रीव ने वो एग्जांपल विभीषण को दिया, सो सुग्रीव के लिए बिल्स रिसीवेबल गोज आउट एंड विभीषण के लिए बिल्स रिसीवेबल कम्स इन। विभीषण ने वो बिल सपोज रावण को दिया, तो रावण के लिए बिल्स कम्स इन, विभीषण के लिए बिल्स रिसीवेबल गोज आउट, रावण के लिए बिल्स रिसीवेबल कम्स इन। एंड रावण लंका में सीता को बिल प्रेजेंट करेगा एंड सीता विल ऑनर सपोज। समझ में आ रहा है? तो बाकी सीता छोड़ के बाकी जो भी पार्टीज है उन सब के लिए वो बिल क्या है? बिल्स रिसीवेबल है, बिकॉज दे रिसीव द बिल, दे आर नॉट एक्सेप्टिंग द बिल। एक्सेप्ट करनारी एक ही पार्टी है, दैट इज सीता इन दिस एग्जांपल। बाकी सब बिल्स ले रहे दे रहे, ले रहे दे रहे, तो उनके लिए बिल्स रिसीवेबल होता है। समझ में आ रहा है? सो आगे यहाँ पे लिखा है, सर इन दैट पार्ट व्हेन सीता पेज टू लक्ष्मण, इज इट नॉट एज्यूम दैट राम पेड टू लक्ष्मण, हेंस विल बी एंट्री। अच्छा देखो मैम, पहली तो बात, राम के बुक्स में इसके पहले एक एंट्री होगी, इस बीच में एक एंट्री होगी जो हमने इग्नोर की है, परचेसेस अकाउंट डेबिट, परचेसेस अकाउंट डेबिट टू राम टू लक्ष्मण 10,000। ये क्वेश्चन में लिखा नहीं है इसलिए मैंने एंट्री लिखी नहीं है, हम एज्यूम करके चलते हैं कि वो एंट्री हो चुकी है। क्या एंट्री हो चुकी है? परचेसेस टू लक्ष्मण, एंड फिर लक्ष्मण को हम बिल दे रहे, उसकी एंट्री इधर आ गई मैम, लक्ष्मण टू बिल रिसीवेबल, इसलिए लक्ष्मण का अकाउंट अपने आप क्लोज हो जाता है। देखो लक्ष्मण क्रेडिटर था, फिर लक्ष्मण को हमने बिल देके सेटल कर दिया, इसलिए लक्ष्मण, मेरे बुक्स में पहले सीता का अकाउंट क्लोज हुआ, अब लक्ष्मण का भी अकाउंट क्लोज हो गया। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? सो ये एंट्री छुपी है, ये समझ में आना चाहिए। कौन सी? परचेसेस फ्रॉम लक्ष्मण। एंट्री उन्होंने क्वेश्चन में लिखी नहीं है, अदरवाइज अगर उन्होंने वो एंट्री लिखी होती तो इन दैट केस ट्राई टू अंडरस्टैंड, राइट, वो एंट्री हम लिख देते और लक्ष्मण का अकाउंट क्लोज हो गया। समझ में आ रहा है? सो वही तो मैं समझा रहा हूं। इफ वी रिसीव कैश फ्रॉम डेटर, कैश अकाउंट डेबिट, वी रिसीव चेक फ्रॉम द डेटर, बैंक अकाउंट डेबिट, इफ वी रिसीव बिल फ्रॉम द डेटर, मे बी उसने एक्सेप्ट करके दिया होगा या उसने किसी और का बिल हमें चिपकाया होगा, हमारे लिए बिल रिसीवेबल डेबिट, हमारे लिए तो बिल आ गया ना, बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू डेटर अकाउंट क्रेडिट। अब इसके बुक्स में, डेटर के बुक्स में क्रेडिटर को पेमेंट कैसे कर सकता है? क्रेडिटर अकाउंट डेबिट, क्रेडिटर के को कैसे पे कर सकता है? टू कैश, कैश देके हो सकती है कि सेटलमेंट? हाँ सर, हमने 11-12 में बहुत बार किया है। टू, हम चेक देके भी सर पेमेंट कर सकते हैं, गुड, टू बैंक। अब नई मेथड से की, हम एक्सेप्टेंस देके सेटल कर सकते हैं, बिल्स पेएबल, क्रेडिट, क्रेडिटर टू बिल्स पेएबल। ये मतलब हम हमारा एक्सेप्टेंस दे रहे हैं, हम किसी और का एक्सेप्टेंस चिपका नहीं रहे, हम हमारा एक्सेप्टेंस दे रहे हैं। एंड फोर्थ ऑप्शन होता है किसी और का एक्सेप्टेंस क्रेडिटर को चिपकाना, उसको बोलते हैं इंडोर्समेंट। बिल्स रिसीवेबल गोज आउट, बिल आया था तब डेबिट हुआ होगा और चिपकाने पे वो क्या हुआ होगा? गोज आउट क्रेडिट। इसको हम बोलते हैं एक्सेप्टेंस, ओन एक्सेप्टेंस। जो सीता ने किया था, एक्सेप्टेंस दिया था, और ये एंडोर्समेंट है जो राम ने किया है लक्ष्मण के साथ। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यस और नो? ये समझा? ये समझ में आना चाहिए। द मोड्स ऑफ सेटलमेंट, नाउ वी लर्न 4 मोड्स। अगर मुझे किसी को सेटल करना है, किसी का अकाउंट, मैं 4 तरीके से कर सकता हूँ, कैश देके, चेक देके, खुद का एक्सेप्टेंस देके, या किसी और का एक्सेप्टेंस उसको चिपका के इंडोर्समेंट के थ्रू। किसी और का एक्सेप्टेंस मेरे लिए बिल रिसीवेबल था, वो मैंने उसको चिपकाया,
सो 4 ऑप्शंस और 4 वेज ऑफ सेटलमेंट. ठीक है, नेक्स्ट. क्लियर है यहां तक? अगर यहां तक क्लियर है तो मैं आगे जाऊंगा. इफ एनीवन हैज डाउट प्लीज प्लीज आस्क मी. मैं बहुत बार बोल रहा हूं बिकॉज जब तक समझ में नहीं आएगा इट इज नो पॉइंट गोइंग फॉरवर्ड. सिंपल डाउट है. मैंने बोला बी कंपैशनेट टुवर्ड्स योर अदर क्लासमेट्स बिकॉज आपका डाउट भले ही सिली हो सकता है राइट, बट बाकी बच्चों के लिए वो मे बी यूजफुल हो सकता है. या अगर आपको लगता है किसी और का डाउट सिली है, डोंट लाफ एट सच डाउट्स, डोंट कमेंट ऑन सच डाउट्स, लेट हिम आस्क द डाउट. क्या पता वो डाउट के बाद वो आपके लेवल पे आ जाएगा. एक लेवल तक खाली उसको पता नहीं, अगर उसको एक बार पता चल गया तो वो आगे जाएगा. समझ में आ रहा है? सो हमने ऑप्शन 2 देखा, एंडोर्समेंट. ठीक है, सो एंडोर्समेंट में क्या है इंपॉर्टेंट है? एंडोर्समेंट में देखो सामने आपके स्क्रीन पे राइट, जब बिल एंडोर्स होता है, जब ड्रॉवर एंडोर्स करेगा, ड्रॉवी के बुक्स में एंट्री नहीं आएगी. थर्ड के केस में देखो ड्रॉवी के बुक्स में एंट्री नहीं है. एंड जब ड्रॉवी वो बिल ऑनर करेगा तो ड्रॉवर के बुक्स में ऑनर की एंट्री नहीं आती है. क्या बोल रहा हूं ध्यान देना. व्हेन ड्रॉवर एंडोर्सेस द बिल, ड्रॉवी को कोई लेना देना नहीं है बिकॉज दैट इज ट्रांजैक्शन बिटवीन ड्रॉवर एंड हिज क्रेडिटर. ड्रॉवी को शांत बैठना है, कोई एंट्री पास नहीं करनी है. एंड जब ड्रॉवी ऑनर करेगा बिल, ड्रॉवर को शांत बैठना है बिकॉज दैट इज अ ट्रांजैक्शन बिटवीन एंडोर्सी एंड ड्रॉवी. राम को ना ही पैसा मिलेगा ना ही राम पैसा देगा किसी को, अपने आप सेटलमेंट हो जाएगी. समझा? सो ये बहुत बार पूछते हैं, इन केस ऑफ एंडोर्समेंट ऑफ द बिल एंट्री इन द बुक्स ऑफ ड्रॉवर इज राइट. In case of endorsement of the bill, entry in the books of drawee is no entry. And if endorsed bill gets honored, ड्रॉवर के बुक्स में एंट्री आएगी क्या? नहीं. दैट एंट्री इज इन द बुक्स ऑफ लक्ष्मण एंड दैट एंट्री इज इन द बुक्स ऑफ whom? राइट, सीता. समझ में आ रहा है? आगे मैंने अभी तक लक्ष्मण के बुक्स में एंट्री इतना डिस्कस नहीं किया है, उसके लिए तो बिल से पहले जैसे ड्रॉवर के बुक्स में एंट्रीज होते हैं वैसे उसके बुक्स में एंट्रीज हो जाएंगे. ठीक है, अच्छा. केस सी. एंड मैं अच्छा यहाँ पे मैं आपको फ्लो चार्ट समझाता हूँ. यस, मैंने फ्लो चार्ट नहीं समझाया क्योंकि मैं फ्लो चार्ट पे ज्यादा फोकस करता हूँ बिकॉज वो इजी है समझने के लिए. एंट्रीज हाँ, इसको मैं नीचे ले सकता हूँ मोड्स ऑफ सेटलमेंट और ऊपर समझा सकता हूँ. ध्यान देना, फ्लो समझो, किस फ्लो में हमारे ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं. ठीक है, देखो राम ने पहले सेल किया, बराबर. सेल किया इसलिए डेटर जनरेट हो गए, सीता के फॉर्म में डेटर्स बन गए, बराबर. डेटर्स ने एक्सेप्टेंस दिया इसलिए हमें बिल्स आ गए. बाद में हमने ये एंडोर्स किया. किसको एंडोर्स किया? हमारे क्रेडिटर्स को. हमने हमारे लक्ष्मण को बिल क्रेडिटर को एंडोर्स किया. सो एंट्री क्या हो गई? जब हमने सेल किया था, डेटर्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स, बराबर. फिर बिल आ गया डेटर से, बिल्स रिसीवेबल कम्स इन डेबिट टू डेटर अकाउंट क्रेडिट. फिर वो बिल हमने लक्ष्मण को दिया, लक्ष्मण अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल गोज आउट क्रेडिट. बिल आया डेबिट, बिल गया क्रेडिट. मैंने यहाँ पे सबसे पहले रूल लिखा है, बिल्स रिसीवेबल कम्स इन, बिल्स रिसीवेबल गोज आउट. समझा? तो ओवरऑल अगर आपको समझ में आता है, राम के बुक्स में सीता का अकाउंट क्लोज हो चुका था, राम के बुक्स में राइट बिल्स रिसीवेबल अकाउंट क्लोज हो चुका था. एंड राम के बुक्स में पहले कभी जब उसने लक्ष्मण से गुड्स परचेस किया तो लक्ष्मण क्रेडिटर था एंड बाद में उसको डेबिट होने के बाद लक्ष्मण का भी अकाउंट क्या हो गया? लक्ष्मण का अकाउंट क्या हो जाएगा? क्लोज हो जाएगा. तो उसके बुक्स में सेल की एंट्री दिखेगी. समझ में आ रहा है? नहीं समझ में आ रहा है? नाउ फ्लो चार्ट इन द बुक्स ऑफ योर सीता, ड्रॉवी के बुक्स में वही फ्लो चार्ट रहेगा, कुछ नहीं. पहले उसने गुड्स परचेस किए इसलिए क्रेडिटर्स बन गए, बराबर. राम क्रेडिटर हो गया. फिर ये क्रेडिटर को हमने हमारा एक्सेप्टेंस दिया, मतलब बिल्स पेएबल दिया. एंड बाद में राइट हमने वो बिल ऑनर किया. ये फ्लो चार्ट है. सो परचेसेस अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर, फिर क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेएबल,
बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिट टू कैश। एंड में मैं ऐसे फ्लो चार्ट लिखूंगा और आप एंट्री बोलते जाओगे, आप भी ऐसे ही लिखोगे, बिकॉज एक के बाद दूसरा पहले डेटर्स बन गए, डेटर्स ने बिल्स दे दिया, फिर बिल कैश में आ गया, क्रेडिटर्स बन गए, बिल्स एक्सेप्ट किया, फिर कैश दे दी, एक सीक्वेंस है, इट इज लाइक ए स्टोरी। ठीक है, आगे नाउ अब हम ऑप्शन सी करने जा रहे हैं। ठीक है, ऑप्शन सी क्लियर है यहां तक? ऑप्शन सी, ठीक है, ऑप्शन सी। ऑप्शन सी में क्या हुआ, देखो राम उसके बैंक के पास गया, राम ने बिल डिस्काउंट किया फॉर हाउ मच, 9,800। 10,000 का बिल राम ने कितने में सेल किया, 10,000, सॉरी 9,800, तो राम का लॉस हो गया 200। अब ध्यान देना मैं क्या बोल रहा हूं, हमारा राम, हमारी सीता, राम की होनी चाहिए बट मैं हमारी बोल रहा हूं। उसके बाद राइट, राम ने गुड सेल किए, बिल ड्रॉ किया, सीता ने बिल ड्रॉ एक्सेप्ट करके राम को दे दिया, राम ने वो बिल किसको दे दिया, बैंक के साथ डिस्काउंट किया, राइट, सीता के लिए वो बिल्स पेएबल है। अब बैंक ड्यू डेट पे किसके पास जाएगी, सीता के पास जाएगी, बिकॉज बैंक इज ओनर नाउ। जैसे हमने बैंक को बिल सेल किया, बैंक ने हमें कैश दे दी, अब बैंक ओनर है, बैंक सीता के पास जाएगी और सीता से पैसे लेके आएगी। जैसे लक्ष्मण ने हमें क्वेश्चन पूछा था, वैसे बैंक भी हमें पूछेगी। हम बैंक के पास गए, बैंकर ने बोला कैसे आना हुआ, राइट, हमने बोला देखो सीता ने हमें एक्सेप्टेंस दिया है 10,000 का, इट इज एन असेट फॉर मी, जिसमें लिखा है सीता इज रेडी टू राइट पे 10,000 आफ्टर 3 months। बैंकर बोलता है अच्छी बात है, इट इज योर एसेट, बोलता हाँ, तो बोले कैसे आना हुआ, बोलता है टुडे आई वांट टू सेल माय एसेट टू यू, आप मुझे कैश दे दो। बैंक बोलते है ठीक है कैश देंगे, उसका क्या होगा, तो देखो वैसे जब आप मुझे कैश दोगे, आई एम इन नीड ऑफ कैश, आप मुझे कैश दे दो, बाद में तो मुझे तुझे आपको पे करना है ना, तो मैं पे करूं या सीता आपको पे करे मेरे बिहाफ पे, आपको क्या फर्क पड़ता है, आपको 10,000 आने से मतलब ना। तो बैंकर बोलता है ठीक है क्या कर, आज तू हमें बिल सेल कर, बट हमें तुझे 10,000 नहीं देंगे। क्यों 10,000 नहीं देंगे, बिकॉज 3 months के बाद सीता से कितने आने वाले, 10,000। आज वो हमें 10,000 देंगे और 3 month के बाद उनको 10,000 आएगा, उसमें उनका क्या, उनका लॉस ही है, ऐसे नहीं चलेगा। तो वो बोलेंगे हम तुझे 10,000 नहीं देंगे, हम थोड़ा कम देंगे तुझे, तो वो हमें 9,800 देंगे। आज वो हमें 9,800 देंगे एंड 3 months के बाद वो बिल प्रेजेंट करके 10,000 सीता से लेके आएंगे, फिर वो हमें कैश देंगे। क्या डबल डबल क्यों कैश देंगे रे हमें, वो कैश उनकी है तो वो उनके पास ही रहेगी। समझ में आ रहा है? फिर बैंकर बोलता है कि ये बहुत अच्छा है कि फिर हम बिल डिस्काउंट करेंगे। बैंकर का नेक्स्ट क्वेश्चन है, बट अगर सीता ने ड्यू डेट पे बिल ऑनर करने से मना कर दिया तो क्या हो गया, सीता अगर पे नहीं करेगी तो राम बोलेगा मेरा अकाउंट तो आपके पास है, मेरा करंट अकाउंट, आई एम ए बिजनेसमैन, मेरा करंट अकाउंट आपके पास है, आप मेरे अकाउंट को डेबिट करो ना, निकालो ना पैसे। सो डोंट वेट कि मैं सीता से पैसे लेके आपको दे दूंगा, मेरा तो अकाउंट आपके पास है, डेबिट इंस्टेंटली। अगर सीता डिसऑनर करेगी, आप मेरे अकाउंट से रिकवर करो, बाद में मैं सीता से रिकवर करूंगा, डोंट वरी।